Hello my dear students, today we are going to start MCQ practice of chapter 13 when earth shook. So let's begin. Our first question is earthquake is caused by, and our options are shaking of earth, shaking of river, shaking of trees, none. है धरती हिलती है तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक क्या होगा? शेकिंग ऑफ अर्थ. सो आवर ऑप्शन इज A. Shaking of earth. Now our next question. Question number 2. The outermost layer of earth is called. You can see in the image, in the picture, there are 4 layers of earth: crust, mantle, core and inner core. You can see in the picture there are 4 layers of earth: crust, mantle, core and inner core. So the outermost layer is crust. So our option will be A, crust. So remember this, the outermost layer of earth is called crust. Now question number 3. A boy is sitting under a table holding tightly during an earthquake. Why do you think one should go under a table or any other strong object during an earthquake? You can see in the picture there is a boy and he is under the table holding the table tightly during an earthquake. So our options are: the table will work like a parachute while the boy is going down. कि टेबल जो है वो एक पैराशूट की तरह वर्क करेगी जब बॉय जो है नीचे की तरफ जाएगा. सेकेंड ऑप्शन, ही विल बी कंफर्टेबल अंडर द टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. ये वो कंफर्टेबल है टेबल के अंदर. इट इज़ ईजियर टू फाइंड समवन ट्रैप्ड अंडर अ टेबल और एनी अदर लार्ज ऑब्जेक्ट. एंड द लास्ट ऑप्शन इज द टेबल विल सेव हिम फ्रॉम हैवी थिंग्स लाइक स्टोन्स, रूफ्स और फैंस फॉलिंग ऑन हिम. एज यू नो, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक जो आपकी अर्थ है वो शेक करती है एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कैन बी लो एंड कैन बी हाई. इफ़ देर इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक देन क्या होगा, जो आपकी अर्थ है बहुत तेज़ी से शेक करेगी, बहुत तेज़ी से हिलेगी एंड मे बी जो छत है, रूफ है या फ़ैन है वो कुछ आपके ऊपर गिर जाए. तो इसीलिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के अंडर या टेबल के अंडर आपको छिपना होता है. तो दैट मीन्स वाई यू आर गोइंग अंडर द टेबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द falling objects like fans, stones and other things. So here our answer will be D. To save ourselves we go under the table or any other heavy or strong object. Okay. Now question number 4. The instrument used for measuring earthquake on Richter scale is barometer, seismograph, ammeter, voltmeter. So we have already done this in this chapter. It is seismograph. Remember this, to measure the intensity of earthquake on Richter scale we use seismograph. So you can see in the picture it is a seismograph and the scale which is used to measure the intensity of earthquake, it's called Richter scale. So remember this. So here our answer will be seismograph. It is our answer. Now question number 5. Which calamity occurs on 26 January 2001 in Bhuj, Gujarat? गुजरात के भुज एरिया में, जिसका कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है यही इंसिडेंट. इट इज़ एक्सप्लेन इन योर चैप्टर. सो इट इज़ अर्थक्वेक. Yes, the calamity occurs on 26 January 2001 is earthquake. Now question number 6. Shortage of food and water can result in. Shortage of food and water. So it is your famine. Answer is famine, जिसे हम हिंदी में भूखमरी भी बोलते हैं. अगर खाना और पानी नहीं होगा that means ये आपका क्या होगा? famine. Question number 7. Excessive rainfall can lead to, and our options are tsunami, flood, famine, drought. So excessive rainfall can lead to, अगर excessive rainfall होगी तो क्या होगा? हर तरफ water होगा, water logging will be there.
सो इट इज़ कॉल्ड फ्लड। जब हर तरफ पानी पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लड। सो आवर ऑप्शन विल बी बी, फ्लड। एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू फ्लड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन देयर इज नो रेन क्रॉप्स कैन फेल देन देयर कैन बी। सो अगर बारिश नहीं होगी, फसल भी नहीं होगी तो क्या हो सकता है? सुनामी, फ्लड, फेमिन और ड्रॉट। तो फेमाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हेन देयर इज़ नो फूड नो वाटर। फ्लड हम कर चुके हैं, एक्सेसिव रेनफॉल जब होती है तो आपका क्या होता है? फ्लड। सो नाउ इफ़ रेन नहीं हो, अगर बारिश नहीं होगी, देयर इज़ नो क्रॉप, फसल भी नहीं होगी, देन देयर कैन बी ड्रॉट, यस, सूखा जिसको हम बोलते हैं, अकाल। तो ये क्या होगा आपका? ड्रॉट, ऑप्शन डी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। व्हेन देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल इट इज़ फ्लड, व्हेन देयर इज नो रेन एंड क्रॉप्स कैन फेल इट इज़ ड्रॉट, एंड व्हेन देयर इज नो फूड नो वाटर देन इट इज़ कॉल्ड फेमिन। नाउ our next question, question number 6. In case of earthquake we should take the following precautions. अर्थक्वेक जब आता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं? ऑप्शन ए, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो एन ओपन ग्राउंड। आपको क्या करना है? आपको अपना घर छोड़ना है, या जहाँ पे भी है, आप स्कूल में हो या किसी बिल्डिंग में हो, तो आपको उसे छोड़ना है और ओपन एरिया में जाना है। क्यों? ताकि आपके ऊपर कुछ गिरे ना और आपको चोट ना लगे। सेकंड, लाई डाउन अंडर स्ट्रॉन्ग टेबल, डेस्क और चेयर। आपको टेबल, चेयर या फिर किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे छिपना है। वाई? अगर कुछ गिरता भी है तो वो आपके ऊपर डायरेक्ट ना गिरे और आपको ज़्यादा चोट ना लगे। सी, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज़ एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। आपको किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ों से दूर रहना है। आपको ग्लास विंडो से भी दूर रहना है। वाई? क्योंकि अर्थक्वेक में हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो आपको अपने आप को इन चीज़ों से सेव करना है। डी, ऑल ऑफ दी अबो। तो ऑप्शन हमारा, आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबो, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन हमें करने चाहिए इफ़ देयर इज एन अर्थक्वेक। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. साइक्लोन्स आर, व्हाट आर साइक्लोन्स? ए, हैवी रेनफॉल, बी, मैन मेड एमरजेंसी, सी, फ्लड्स और डी, हाई स्पीड विंड्स। सो साइक्लोन आपके क्या होते हैं? हाई स्पीड विंड्स। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो आपके साइक्लोन्स आ जाते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं, जिनको हम चक्रवात बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, हाई स्पीड विंड्स आर कॉल्ड साइक्लोन्स। Now question number 11, which is the apex body for disaster management in India? That means कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की वो है जो जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर समझते हो आप, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपका फ्लड हो गया, आपका ड्रॉट हो गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, तो कौन सी इनमें से एजेंसी है, कौन सी बॉडी है जो वर्क करती है? आर्मी, CISF, एयरफोर्स और NDRF। द फुल फॉर्म ऑफ NDRF इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, तो यही आपकी बॉडी है गवर्नमेंट जो आपकी किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पे वर्क करती है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ऑरेंज वाली ड्रेस जिन्होंने पहनी हुई है, दे आर द पीपल फ्रॉम NDRF। ओके, तो ये आपको हर जगह जब भी कहीं डिज़ास्टर होगा वहाँ पे वर्क करते हुए दिखाई दे जाएंगे। दे आर सेविंग द पीपल। इन दिस पिक्चर इट इज़ फ्लड and they are working to save the people. So our option is D, NDRF। नाम ध्यान रखना आप उसकी, और फुल फॉर्म भी याद रखना। Now our next question, question number 11, identify the man made disaster। अब हमने इस चैप्टर में दो तरह के डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल क्या होते हैं? जो आपके नेचर के कारण आते हैं, डैट मीन्स उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है, मैन मेड नहीं होते हैं वो, और उन पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। डैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड। सो हियर आवर ऑप्शंस आर ए, फ्लड, बी, वोल्केनिक एरप्शंस, सी, ड्रॉट एंड डी इज डिफॉरेस्टेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन मीन्स
जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं, देयर इज़ नो ट्रीज, सो इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो यही आपका मैन मेड होगा। ओके, सो अवर ऑप्शन, अवर आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या काम करता है? बिल्ड हाउसेस, घरों को बनाता है। प्रिपेयर डिज़ाइंस ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स, डिज़ाइन बनाता है। हेल्प पीपल इन नीड, या जिनको ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करता है। और मेक रूल्स फॉर पीपल, या फिर रूल्स बनाता है लोगों के लिए। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आर्किटेक्ट का वर्क क्या होता है? डिज़ाइंस बनाना, टू प्रिपेयर द डिज़ाइंस फॉर द हाउसेस। और हम डिज़ाइन को ही आर्किटेक्चर भी बोलते हैं कि क्या इस जो भी आपकी बिल्डिंग है इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, दैट मीन्स बिल्डिंग का डिज़ाइन। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? ही प्रिपेयर डिज़ाइन फॉर एनी बिल्डिंग और हाउस। So next question, question number 13, the point on the earth's surface directly above the focus is called the focus, epicenter or zero point. So you can see the picture, the point directly above from the focus, it is called epicenter. और फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ये आपका पॉइंट है जहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसके डायरेक्टली बिल्कुल ऊपर जो अर्थ पे आपका पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। So our option is B, epicenter. Remember this. Now question number 14, what is the reason of people from cities kept coming there after earthquake? जब भी कहीं पे earthquake आता है तो बहुत लोग वहाँ पे आते हैं। Why they came? Why they come there? To live in the village? To help affected people with food, clothes, medicines and other necessary items? To have fun? None of these. तो क्यों लोग आने लगते हैं सिटी से, शहरों से? अगर कहीं विलेज के एरिया में अर्थक्वेक आता है तो, या फिर कहीं पे भी आता है तो बाहर के लोग वहाँ पे आने लगते हैं। वाई? टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। यस, दे केम टू हेल्प द पीपल्स विद फूड, दे ब्रिंग विद देम फूड, क्लोथ्स एंड अदर मटेरियल्स, सो दे वांट टू हेल्प पीपल, सो दे कम। सो आवर आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर अर्थक्वेक? हम अपने आप को कैसे रेडी रख सकते हैं अर्थक्वेक के लिए? इफ अर्थक्वेक कम देन व्हाट कैन वी डू बिफोर हैंड? दैट मीन्स उससे पहले हम क्या क्या तैयारी करके रख सकते हैं? बाय मेकिंग अर्थक्वेक प्रोन हाउसेस, बाय प्लेइंग विद फ्रेंड्स, बाय हैविंग हेल्दी डिनर, बाय स्टोरिंग फूड, वाटर और नेसेसरी थिंग्स। सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन हेयर? सो बाय मेकिंग अर्थक्वेक प्रोन हाउस। अर्थक्वेक प्रोन हाउस का मतलब आप समझते हो, डेट मीन्स अगर अर्थक्वेक आ भी जाता है तो आपके जो घर हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए कि वो उससे गिरे ना। डेट मीन्स वो हिल जाएं लेकिन वो गिरे ना, वो टूटे ना। तो हम क्या करेंगे? बाय मेकिंग अर्थक्वेक प्रोन हाउसेस। ठीक है, और आर्किटेक्ट जो होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपने घर को अर्थक्वेक प्रोन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्केल इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक? तो ये आपका पहले भी एक क्वेश्चन में आया था सिस्मोग्राफ वाले में। तो स्केल आपका कौन सा होगा? रिचर स्केल। रिमेंबर दिस, टू मेजर द अर्थक्वेक वी यूज रिचर स्केल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर इज नो रेनफॉल देयर विल बी नो कारपेट, कार्स, क्रॉप्स और क्लॉथ्स। अगर बारिश नहीं होगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको नहीं मिल पाएगा? कारपेट, कार्स, क्रॉप्स और क्लॉथ्स। तो आपको पता ही है जैसे कि रेन अगर नहीं होती है तो हमारी जो फसल होती है डेट मीन्स क्रॉप्स, तो वो आपकी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज अवर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स? क्यों आते हैं अर्थक्वेक? व्हाट इज द रीजन? द फ्लो ऑफ मैग्मा, द एक्सपेंशन ऑफ अर्थ's crust, the contraction of earth crust or the earth plates rubbing together. So as we know there are many plates under the earth and when they rub to each other earthquake come. So our answer is D. Now question number 19, Kutch is located in which of the following state of India? Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu or Haryana. You can see in the map
एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कच्छ एरिया। जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया था 2001 में 26 जनवरी, तो वो आपका कौन से एरिया में आया था? कच्छ एरिया में। ये आपका कच्छ एरिया और ये कहाँ पे है? गुजरात। सो अवर आंसर विल बी राजस्थान नहीं होगा आपका, गुजरात आंसर होगा। ठीक है, कच्छ एरिया आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ओवरफ्लो ऑफ वाटर बॉडीज अकर ड्यूरिंग अ, ये हम पहले ही फ्लड वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जब भी फ्लड आता है आपका पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फ्लड। ड्रोट आपका क्या होता है? व्हेन देयर इज़ नो रेन। ओके, साइक्लोन आपके स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, और फायर आपकी क्या होती है? आग। कभी कभी जंगलों में बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो आग लग जाती है, तो ये भी आपका एक नेचुरल डिज़ास्टर है। थैंक यू, होप you liked my video. Do the practice for all these questions. We will meet in our next video. Please like, share and subscribe.